I'm gonna cut down to the chase and get started with this. I want to ask you questions. Taskeen, help me out with asking people to answer this. What do they understand from the Definitely. term communication? What do they understand from the term communication? So we can have answers in the chat box. That would be quicker if participants can please type it down. No, I want to hear one or two people speak, please. You want to hear them? All right. So we have Miss Aisha. Miss Aisha, if you would like to answer, you're unmuted. यस मैम सर कम्युनिकेशन का मतलब लोगों से इंटरेक्शन लोगों से बात करना इंटरेक्ट करना बिल्कुल सही, इंटरैक्ट करना, बात करना। ओके, बिल्कुल ये पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। और कैसे बात करना? सर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इससे आप कम्युनिकेशन हाँ, कर सकते हैं दिन भर आप ठीक जितने है, लोगों से मिल सकते हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं यहाँ थ्रू हम इसके आईबीए के थ्रू हम लोगों से बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Sir, ओके, communication is so we have Abu basically sir. Yes, Okay. Abu sir. sir, communication is basically interacting with someone, when you communicate with someone, so basically you should understand them and they should understand you. In a perfect mode of communication, there should be no communication gap where two people perfectly understand each other and know what the other person want and what they want. That's what I think communication is. बहुत अच्छा आपने कहा, आपने थोड़ा लेवल इंक्रीज किया है। आपने इसमें एक चीज बात की है कि when there are two parties, Yes. so एक one person is saying something, the other person is trying to understand it, and when they understand each other, that is communication. बहुत अच्छा था। Anybody else? I want someone else to give it a shot. Can I Two say? more people. Yes. Okay. According to me, communication means to get your point across to another person. And there can be many means of communication, phone, typing, email, or even hand gestures, etc. वाह, कौन बेटा कौन बोला था अभी ये? Yusra Ilyas, Karachi. युसरा। ओके, अच्छा, अब बेहतरीन, जबरदस्त। आपने other than the first answer, you've added the non-verbal communication part, कि जरूरी नहीं है सिर्फ हम कम्युनिकेट करें हमारे बातों से, जिस तरह पहला आंसर हमें आया था, या फिर हम कन्वे करें मैसेज अपनी राइटिंग से। हमारे नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इज जस्ट एज इक्वली इंपॉर्टेंट। एक्चुअली studies show that non-verbal communication is much of what we communicate through when we're doing in-person meetings. So it's as high as 70 to 90%. Some go as far as 93% of what we say is through non-verbal communication. अगर आपको मेरा चेहरा नजर आ रहा है, मेरी आईब्रोज रेज हैं, ये non-verbal communication है। जिस तरह मैं स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ इस मैटर पे, ये non-verbal communication है। All right? Okay, good. All right, I'm going to share something with you that will tell you what these famous people say about communication. All right, यहाँ पर हम जो ऑडियंस है, this diverse audience as I see it, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ A levels में हैं, कुछ PhD कर रहे हैं, and so on and so forth. All right, हर एक का अपना एक डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स का लेवल होगा। ऑलराइट, और इट डजंट मीन कि एक बंदा दूसरे से बेहतर है, बट नॉनदलेस ये ऐसी स्किल है कम्युनिकेशन जो हम पैदा होने से, और जब तक हम मरेंगे नहीं, हम ये कम्युनिकेट करते जाएंगे। ठीक है, जब पैदा होते हैं, रोते हैं, तो ये एक किस्म का अपनी माँ से कम्युनिकेट ही करना होता है कि मुझे खाने की जरूरत है, मुझे जब हमें मार पिटती है, हम अपना दर्द इजहार करते हैं, ये हम कम्युनिकेट करते हैं। सो हम हर एक की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन बिकम्स डायरेक्टेड, कि इस चीज के लिए हमने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को हमने इस्तेमाल करना है, और हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो I'm going to log on to the computer and share something with you.
Yes, yes, I'm here. Taskeen, G. I wanna share my screen. Is that possible? Yes, that's possible because I've made you the co-host, so you can do it. No, but I'm it's in on the other account, my computer account where it's muted. So I wanna. I've made you the co-host for both the accounts. By what name are you logged in on the other account? Let me check. All right, let me make you the. Usman Nazir है दोनों. All right, just a second. Can you check now? Okay, let me try. Can you all see my screen? Yes. Yes. Okay, perfect. All right. My big objective today is to leave you with thinking about communication. कि communication जो है कितना important topic है और हम इसको हमें learn करना चाहिए, हमें इसके बारे में थोड़ा सीखना चाहिए. All right. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़े फिलोसोफर, बहुत बड़े राइटर, says the single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. इसका मतलब ये होता है कि हम सारे लोग जो बैठे हैं, हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत जबरदस्त कम्युनिकेट करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. और जब हम बात कर चुके होते हैं, हम समझते हैं कि हमने अपनी बात पूरी कर ली और दूसरे को समझ आ गई. इट्स एन इल्यूजन, ही सेज. ये इल्यूजन कि दूसरे को समझ आ गई, हैज अ लॉट ऑफ assumptions. ओके, सो हमें इसको, इन assumptions को कम करने के लिए इस पे एफर्ट डालना पड़ेगा और इसको सीखना पड़ेगा. विंस्टन चर्चिल, इसको वर्ल्ड वॉर का हीरो भी कहा जाता है, वर्ल्ड वॉर 2 का. ही सेज द रिपोर्ट बाय इट्स वेरी लेंथ, जो चीज आप लिखते हैं, डिफेंड्स इटसेल्फ अगेंस्ट द रिस्क ऑफ बीइंग रीडिंग इट. तो क्या बीइंग रेड, कहने का मकसद ये है कि your writing, the way you write and the length of it, जो आप चीज प्रेजेंट करते हो, अपना बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करते हो, अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हो, इन इटसेल्फ इट टेल्स कि दूसरा बंदा कितना इंटरेस्टेड होगा उस चीज में. ऑलराइट, देखिए मार्क ट्वेन क्या कहते हैं. मार्क ट्वेन, कैन समवन रीड इट? Eliza, can you read this out? Eliza, Usman this. Saab, we can anyone else confirm? Because for me, what I can see is I can see your folder and I can see that your MS Office Word is opening. It's not opened yet. So if anyone else can confirm. बिल्कुल यही आ रही है स्क्रीन पे. Gee, so your Word is not actually open with us. I can see the folder. Right. But the Word is not open. That's weird. Can you see it now? Yes, now it's there. अच्छा तस्कीन, why is that कि मैं पूरा स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, एक एक करके शेयर करना पड़ेगा? मतलब I can see your entire Word document right now. So when you चलो scroll ठीक है. through it, we will scroll through it. We will go through it. You चलो. can just test it up, test कर लें एक दफा. कर लिया मैंने टेस्ट. ठीक है, perfect. All right, Yes. Eliza, go ahead. Can you read this out? Okay, I'm going to read it. A man's character may be learned from adjectives which he habitually uses in conversation. मतलब कि हम जो चीजें लिखते हैं, especially adjectives, जैसे हम describe करते हैं चीजों को, उससे हम लोगों को बता सकते हैं कि किस किस्म का इंसान है. तो the way you write, the way you communicate, the way you come across tells a lot about yourself. ठीक है? Speak so I may know you is a proverb that tells कि आप थोड़ा बोलें ताकि मैं आपको समझ सकूं आप कैसे इंसान हैं. ठीक है? So communication is what we're doing right now too, is communication using the technological tool. Let's see what Tony Robbins says. Can somebody read this out loud? ऐसा लग रहा है मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, तो I usually try to call people. Farah Khan, Yes. go ahead. Farah Khan.
टोनी रॉबिन्स क्या कहते हैं इस पर? Communication Farah is Khan, a can you read? solvent of, yes, I can read. Communication is No. a solvent of all problems and is the foundation for personal development. All right, that's what Peter Shepard is saying. Okay, and he's saying that communication is such a क्या कहते हैं important tool in personal development कि आप उसको सीखें ही सीखें. अच्छा, और टोनी रॉबिन्स लास्ट वन. लेट्स सी, मैं सारे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे ख्याल में इतना काफी रहेगा. फारा खान, कैन यू रीड ऑन प्लीज? आपने बहुत अच्छा पढ़ा. अनम्यूट करके. There's also Fatima Zahra from Geneva who would like to read. Go ahead, Fatima. जी sir, ये to effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others. Okay. What do you understand from this, Fatima? सर यही कि अगर हमें अच्छी तरीके से मतलब किसी को अपनी बात समझानी है तो कम्युनिकेशन इज द मेन, कि आप बात किस तरह से कर रहे हैं या आपका आइडिया क्या है चीज़ों को लेके, क्योंकि आप खुद पहले उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे तभी आप दूसरे को समझा सकते हैं. नहीं बेटा, थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया आपने. कोई और बताए, कोई और बता सकता है कुछ? You can just speak. Taskin, help me out. Yes, Liaqatullah is there. I'm asking you to unmute, please. Liaqatullah, can you go ahead? इससे क्या समझ आई? टोनी रॉबिन्स क्या कह रहे हैं? Liaqatullah, Aliza, Charan, please. Can you reply? Yes, Charan, can you go? Hello? Hello, can I speak? Yes, Aliza. Yes, please go ahead. जितना मुझे समझ में आ रहा है, इधर यहाँ पे ये लिखा है कि हर एक का समझने का अंदाज मुख्तलिफ होता है. इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबका जो बात कैच करने का ढंग होता है वो डिफरेंट होता है. तो हमें जिस तरीके से वो समझते हैं उसी अंदाज को कैच करके उनको मजीद कम्युनिकेट करें हम उनके साथ. आपने बहुत अच्छा कहा. ठीक है, अब देखें, ये आपने बात की है दूसरे बंदे जिससे आप बात करना चाह रही हैं, the other party. All right, so what Tony Robbins is trying to say is हर इंसान अलग है. All right, आप जाकर उस बंदे को, अगर आपकी समझ नहीं है, आप उसको समझाना चाहते हैं तो उसके तरीके से समझाएं. अगर कोई इंग्लिश नहीं समझता तो उसको इंग्लिश में नहीं समझाएं, उसको उर्दू में समझाएं. अगर कोई दूसरे कल्चर से है तो आपका आपके कल्चर की बातें शायद ना समझ सके. ठीक है, अगर आप रोजे रखते हैं तो एक ऐसा माशरा जहां वो रोजे नहीं रखते वो शायद ना समझ सकें कि आप रोजे किस वजह से रखते हैं. तो यू हैव टू स्पीक इन अ वे कि वो उनको इस चीज का पता नहीं है. यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू देम. ठीक है, ऑलराइट, गुड, थैंक यू एलाइजा. And there are many others, many others. You can have brilliant ideas, but if you can't get them across, your ideas won't get you anywhere. आपके पास entrepreneurship का बेहतरीन आइडिया हो, लेकिन आप अगर उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते इफेक्टिवली अपने कस्टमर्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, that idea is worth nothing. You cannot get it across. ठीक है, तो you must learn how to communicate better. And how do you learn to communicate better? कोई भी आंसर करे, raise hand and answer. What must you do to learn to communicate better? Rabia. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam, beta. Yes, so I was saying that to communicate better, we should first analyze that what other person is perceiving from us. कि उसके mindset क्या है, उसके opinion क्या है. हमें पहले जब हम किसी को समझ लेंगे उसके हिसाब से बात करेंगे और उसके level के हिसाब से बात करेंगे तभी वो comfort. I think this is. ठीक है, बिल्कुल सही. अच्छा, लेकिन You can learn different languages.
You can learn different languages. Yes, yes, yes. Dua, good. और जो हम किसने कहा था can I answer? Okay, Can I ठीक say है. something? Okay, Abu Zar, can you speak? Yes, sir. Sir, what I was trying to say is that, like you asked, how can we improve our communication? So basically, in order to improve our communication, we first need to be good listeners. Because if we listen to what other person is saying effectively, and after listening to them, if we answer them effectively, this can improve the communication gap and in communication in general. Okay, got it. Okay, good. अच्छा, अब क्या करते हैं, एक छोटी सी चीज आपको मैं बताता हूँ, जबरदस्त. ठीक है, इस आंसर के लिए हमारे पास 100 पार्टिसिपेंट्स हैं इस कोर्स में, और आपको 100 डिफरेंट जवाब भी मिल सकते हैं. ठीक है, अब आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करता हूँ जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ करता हूँ, टू लर्न एनीथिंग. ठीक है, तो एक छोटी सी एक्टिविटी है, तो ट्राई फॉलोइंग इट. आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आईज. Just close your eyes in your own comfort little private room. Close your eyes. I can see 3 people, so at least 3 people have closed their eyes. That's a good sign. Acha. Now, I want you in your head, I want you to count things that are red around you. Don't open your eyes. Don't talk to anybody. Just in your head, count things that are red. Don't open your eyes. You're not gonna tell anybody. Okay? It's not a test, Abuzar. Just close your eyes. Close your eyes and count things that are red. Now open your eyes. Open your eyes. Look around. Look around. Good. Have a good look at your room. Okay? And now close your eyes again. Close your eyes again. Now count the number of things that are red in your room again. Okay, open your eyes. अच्छा, छोटी सी एक्सरसाइज है. होपफुली व्हाट्स गोना हैपन इज, जो पहली मरतबा आपने रेड काउंट किया था वो अक्सर क्या होता है, थोड़ा ही होता है. जितनी मर्जी मतलब मैंने एक्सरसाइज की है, तो यूजुअली तो दूसरी मरतबा होता है वो ज्यादा ही होता है. ठीक है, किसी ने एक शरारत में कुछ कहा हो कि कम है, लेकिन अक्सर ज्यादा ही होता है, होना भी चाहिए. अच्छा, द पॉइंट इज, once you start looking for something, na, you find it. All right? When you start looking for red, you start finding red. When you start looking for green, you start finding green. When you start looking to improve your communication skills, you look for ways to communicate better. That means improving the lisp that you're getting, improving your voice, the tone, the body language, the listening skills, the way you come across, your personality, your writing, your negotiation skills, everything. So you must first start take steps towards that journey. All right, so that's that's an important thing to remember in anything. अगर आप कम्युनिकेशन को कहोगे कि यार मैं तो सबसे अच्छा हूं, बस मैं तो नहीं कर सकता कुछ, then forget it. You're already at that master level. Okay, now what I'm going to do is I have a lot of things here for you, but I think I'm going to cut it short and get to the point. I'm going to ask you to okay, just for fun, check this out. Can you see this? Dua, can you read this out loud? Each picture? Yes. How the customer explained it, how the project leader understood it, how the engineer designed it, how the programmer wrote it, how the sales executive described it, how the project was documented, what operations installed, how the customer was billed, how the help desk supported it, what the customer really needed. All right, what's happening here? Why am I showing you this? Dua. You're probably showing us
this to show us the different needs of people and the business and how the business sees it and what customers really want, the difference? Yeah, not really. Farah, you had your hand raised. Why am I showing you this? सर एक ही चीज दिखाई जा रही है इसमें और डिफरेंट तरह से उसको परसीव किया जा रहा है डिफरेंट लेवल जैसे एक प्रोग्रामर है वो उसको अलग तरह से लिखेगा इंजीनियर उसको अपने लिहाज से डिजाइन करेगा और सेल एग्जीक्यूटिव उसके बारे में डिस्क्राइब करके उसको सेल आउट करवाएगा सो सेम थिंग बट इन डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव हर किसी ने अपने लिहाज से इसको परसीव करके आई थिंक सो एक परसेप्शन अपना शो करवाया है विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन Perfect. अच्छा, यूसरा इलियास, आप बोले बेटा. What I can see from this is a lack of proper communication. Customer ने क्या कहा था और वो आगे जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक के जितने लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने अपनी तरफ से परसीव किया और उन्होंने वही एक्शन एग्जीक्यूट किया जिसकी वजह से जो कस्टमर ने चाहा था वो और जो उनको मिला वो उसमें काफी डिफरेंस है. काफी different. It's similar to Chinese whisper. You're absolutely right, Farah and yourself, Yusra. कि बेसिकली एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो थी कि मुझे ये चाहिए वो बिल्कुल ही अलग थी. ठीक है, वो एक प्रोग्रामर ने अपने तरीके से समझा, वो एक ऑपरेटर ने किसी अपने तरीके से समझा, वो जो फाइनल रिजल्ट था वो अलग ही आया. ठीक है, हालांकि कस्टमर ने सिंपल एक स्विंग मांगा था जिसपे टायर लगाओ. राइट, तो दैट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ communication in business, or this could mean a multi-million dollar project to a small swing, multi-million banking project जिसमें बहुत बड़े आपको e-learning, e-banking systems लगाने हैं. अगर आप चाहते हैं कि छोटा सिंपल चाहिए, आपको पता चला कि उसने तो पूरा रोलर कोस्टर बना के दे दिया आपको. So there you have to be really you have to be really cognizant of the way you speak, way you communicate your requirements. All right. Okay, I'm gonna go ahead. I'm not going to ask you to do this activity, लेकिन आपको मैं मकसद बता देता हूं इसका. ठीक है, Dua and Farah, I can see your pictures, so that's why I keep on referring to you. अच्छा, देखो ये एक्टिविटी क्या होती है. जब क्लास में हम इसको एक्टिविटी को करते हैं या कभी किसी वर्कशॉप में इस एक्टिविटी को करते हैं तो क्या होता है, मैं उनको कहता हूं कि कोई टेक plan out an activity, like plan out, draw something that they remember from their past. So they draw it out on a piece of paper, which I was going to do for you, but I think इतना ज़्यादा टाइम नहीं है इस क्लास के लिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मकसद क्या है. जब आप इसको ड्रॉ करते हैं अपने पेपर पे अपने पास, तो आप एक तरीके से ड्रॉ करते हैं और फिर मैं कहता हूं कि आप इसको एक्सप्लेन करें कि दूसरा बंदा इसको उस आपकी ड्राइंग को कॉपी करे और फॉलो करे. तो अक्सर क्या होता है, बल्कि ऑलवेज क्या होता है, दूसरा जो बंदा ड्रॉ करता है ना, वो आपको आपकी ही क्लासरूम में गलत जगह पे ड्रॉ करता है, गलत फेस पे ड्रॉ करता है, और टीचर गलत जगह पे खड़ी होती है और चॉक बोर्ड की बजाय प्रोजेक्टर लगा होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो कहने का मकसद ये है कि आप जिस तरह अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स दूसरे को बताते हो, वो अपने तरीके से उसको समझ के उसको ट्रांसलेट करके उसको बताता है. एंड हाउ टू बी बेटर एट इट, जब आप अपनी assumptions और अपने जो अपने दूसरे का, जिस तरह टोनी रॉबिन्स ने कहा, दूसरे को समझ के कि दूसरा एक अलग इंसान है, उस तरीके से अगर आप उसको समझाएंगे तो then. Sorry to interrupt, Mr. Usman. Is the screen visible with you, the activity page? नहीं, एक्टिविटी पेज नहीं, मैं तो एक्टिविटी ये वाला. ठीक है. Because yes, the participants were very confused because they couldn't see anything on the screen. Thank you. Sorry. Please continue. Okay. Okay, this is the first time I'm facing this problem. Otherwise, I never had to share each and every document all the time. Anyway. Okay. All right. Okay. So ये दो एक्टिविटीज आपको करानी थी. अपने टीचर आपको बताना था कि आप क्लासरूम में कैसे आप आते हैं. All right. Let's go back. I want you to do something here.
Okay, can you see this mini case? Dua, can you see this? Yes, I can. Yes, sir. Okay, let's see if you can solve this case. बहुत छोटा सा केस है, इसको पढ़ें और मुझे आंसर करें. जब आप पढ़ लें तो raise your hand. Usman sir, if you could zoom this in a bit, अच्छा, I can definitely. that would help. Better? Yes, yes. If you have read it, raise your hand. Perfect, Josefa. Just hold on. You'll be the first one to answer. I cannot see the questions over there because I'll show you the questions. अभी सारों को पढ़ने दो जरा. Okay, I'm going to give you 2 more minutes to read this. Now I'm showing you the questions. You don't have to answer them. I'll just talk to you. ठीक है? Yes, Just sir. read the questions. All right. So, Josefa, tell me what's happening. How do you solve this case? What's going on? A guy named Bruce is a chemical research man who researches about the toxicity of some insecticide जो वो उसको बरी कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरी जो रिसर्च है वो इस capable नहीं है कि ये अप्रूव हो सकते हैं तो उसके कुछ साल बाद like after 7 years another one does the same research and that's been proven positive. That's all. क्यों? Question is why? Why am I asking you to read this? Sir, low. We also have Rabia Said.
Okay, good. Rabia. I guess you are asking us to read it because it is showing that a person is working very hard for achieving its aim, but when he has achieved it, but nobody is motivating him. So that is why he left the company at the end. And although he achieved his task, he made his research possible, but because he was not appreciated, so he left the company. And there was Why lack was of he not motivation. appreciated? Why was he not appreciated, Rabia? But there is lack of motivation, and maybe there was no good communication amongst people in that research. What is poor communication here? I understand you, लेकिन क्या poor communication क्या है यहाँ पे? Poor communication basically motivation है यहाँ पे जो उनको नहीं मिली अपने काम करने में. Okay. अच्छा राबिया गौर से सुनती रहें, जरा किसी और को भी चांस दें, ठीक है? Listen closely. We also Is have this- Marwa Turbat. Can I say? Okay, बोले बेटा. Sir, can I answer? Yes. Sir, I think the reason behind it is that the way he expressed his idea, it wasn't appealing enough for the people. And the same way another person expressed it, it was more appealing and it made in place for his idea. Okay, you got it. You're there, but not 100%. ठीक है ना? What you're saying is, Marwa, what you're saying is, जिस तरह ब्रूस का जो ब्रिलियंट आइडिया था, जो उसने बहुत ज्यादा रिसर्च करके एक ट्रूथ अनकवर किया था, वो उसको सही तरह प्रेजेंट ही नहीं कर सका. ठीक है? उसने जो मेन फाइंडिंग थी, जो जिसकी वजह से ये सारे पैसे उसको मिलने थे, उसको अप्रिसिएशन मिलनी थी, उसको तो उसने छोटे से फाइन प्रिंट में लिखा हुआ था. उसको तो बड़ी हेडिंग बनाना चाहिए था कि मैंने नया इंसेक्टिसाइड डिस्कवर कर दिया है जो बिल्कुल क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक है, उसकी टॉक्सिसिटी लेवल भी ठीक है, उसका क्या कहते हैं वो पैसों में भी कम है, उसको तो मार्केट करना चाहिए था इसको. ब्रूस ने बिकॉज अक्सर टेक्निकल लोग यही गलती करते हैं कि वो टेक्निकलिटीज सारी प्रोवाइड कर देते हैं rather than actually telling the फायदा. इसमें जो फायदा हो रहा है वो ये रिपोर्ट लाइकली कौन पढ़ेगा? जो लोग नॉन टेक्निकल हैं. उनको क्या पता करना चाहिए? उनको क्या पता करना है कि इंसेक्टिसाइड हम ऐसा बना है कि नहीं हमारे पास. वो अगर आप फाइंडिंग को एलैबोरेट करोगे रिपोर्ट में, उसको मार्केट करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, most likely people will then read it. They don't want to read a long report with technical details. अच्छा इमेजिन करो सर्फ एक्सेल अपनी एडवर्ट्स में बजाय इसके वो दिखाएं कि बच्चा गिर रहा है, उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं, उसको जाके धो रहे हैं, तो सारे खुश हो गए. वो आपको दिखाते भी नहीं कि केमिकल फॉर्मूला क्या है. आप सर्फ एक्सेल खरीदोगे? नहीं. आपको फायदे देखने हैं सर्फ एक्सेल के. आपको ये नहीं देखना कि वो केमिकल कौन सा सोडियम, कौन सा क्लोराइड, कौन से केमिकल से बना हुआ है. ये लेस ऑफ इट. सो टैकलिंग द इश्यूज, टैकलिंग द यू is very important. Tackling the other party is very important. ठीक है? Rabia, do you get it? Rabia. Okay, Rabia is not there. Farah, you have your hand raised. I'll give you the last word. Go ahead. सर इसमें एक और चीज आई वुड लाइक टू ऐड इज दैट कि यहाँ पर ये ज्यादातर अपने आप जितना भी से रिसर्च किया उसमें कोई सेकंड पर्सन था नहीं इन्वॉल्व. ऑल ही वाज रिसर्चिंग ऑन हिज ओन. एंड एक चीज ये कि उसमें किसी एक बंदे ने उसकी रिसर्च को डिस्कवर किया था. लेटर ऑन उन्होंने इस चीज को वैलिडेट किया. देन दे फाउंड आउट दैट ही वाज राइट. बट कुछ ऐसे मैनेजमेंट इश्यूज होंगे, वो डिमोटिवेट भी हुआ क्योंकि उसने अपना काम किया था, बट ही फेल टू रिप्रेजेंट इट वेल. एंड ऑन द अदर हैंड उसको डिमोटिवेशन फील हुई, सो ही लेफ्ट द जॉब बिकॉज ऑफ दिस रीजन. बट जो उसकी रिसर्च थी वो वैलिड थी. वो जो उसने वर्कआउट किया था कि कौन सा केमिकल ऐसा मतलब एनवायरमेंटली इको फ्रेंडली होना चाहिए, टॉक्सिसिटी की कम हो. सो यहाँ पे एक चीज है कि इसने किसी और सेकंड पर्सन को या किसी और टीम मेंबर या अपनी मैनेजमेंट को इन्फॉर्म ऐसे मे बी इसने नहीं किया. दैट्स आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द केस स्टडी. यस फारा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ एक और चीज कह रहा हूँ, और आपकी व्हाट यू सेड लिटिल मोर इन अलोंग द सेम लाइंस.
कि गलती सिर्फ मैनेजमेंट की या कंपनी की नहीं है कि ब्रूस छोड़ के चला गया, गलती ब्रूस की भी है। ब्रूस की क्या गलती है कि उसने सही तरह अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया, अपने आइडियाज को प्रेजेंट नहीं किया। ही कुड नॉट कम्युनिकेट हिज रिसर्च टू द बोर्ड मेंबर्स, टू द मैनेजमेंट। हैड ही डन दैट, इतना ज्यादा पैसा ना लगता कि दोबारा रिसर्च करनी पड़े सेम ही चीज को डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, तो अगेन द वे यू कम्युनिकेट, क्या चीज किस बंदे को क्या कैसे बतानी चाहिए इज इंपॉर्टेंट। आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं, बहुत अच्छे अकाउंटेंट हैं, पीएचडी आपने की हुई है, लेकिन जब आप किसी बंदे को अपना प्रोडक्ट सेल करने जाते हो और उसको बताते हो कि इसके क्या फायदे हैं, तो इसके फायदे ऐसे बताओ कि दूसरे बंदे को फायदे लगे। उसके फायदे बताओ कि भाई ये जो क्या कहते हैं सर्फ एक्सेल है, ये कपड़े बहुत अच्छे धो देता है, ये जो है बच्चों के कपड़े बड़े अच्छे धोते हैं, बड़ों के सारों के छोटी सी स्पून से धो देता है। ये नहीं बताओ कि इसमें जो है ये केमिकल्स हैं, ये हैं, वो दे विल नॉट बी एबल टू गेट इट, दे आर नॉट इक्विप्ड टू गेट दैट। ठीक है, ओके फारा, okay, good, all right, perfect. I like the show of thumb. Okay, again I'm gonna miss out this case study again. I think it was along the same lines. That shows कि भाई आप जो हैं आप जो काम करते हैं उसको प्रेजेंट करने की भी एबिलिटी आप में होनी चाहिए। And how you do that? I'm gonna go back and I'm gonna share something else with you. Okay, last one. Before I actually tell you the whole point of this session, let me open it. Can you, one second. Can you see this? Amin Shah, आप इसको देख सकते हैं? Yes, we can see it. Okay, अब आप इसको पढ़ें और मुझे बताएं क्या समझ आई आपको। Amin Shah, we can't hear you. Mr. Amin Shah, please unmute yourself. Yes, please speak now. Mr. Amin? Mr. Usman, can you hear me? Yes, I can hear you fine. Yeah, I don't think he's there anymore. Amin Shah. Achha, Amin Shah, you can mute yourself. I want to ask Ammar. Ammar has raised his hand. Ammar, beta, can you? Okay, same people are raising. Noman, बताएं इसको क्या कह रहे हैं, पैराग्राफ क्या कह रहे हैं? Well, I think communication there is a problem, but can't use the system manager. He's telling the chief engineer that he had contacted the owner, Mr. Jain, on 25th July, and Mr. Jain is. अच्छा, I want you to tell me in Urdu. ये क्या कह रहा है? कोई और बताए। फारा, नमान आपकी आवाज इतनी अच्छी नहीं आ रही, सॉरी,
फारा आप बताओ, ये उर्दू में बताओ ये क्या कह रहे हैं? सर यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओनर्स ने जो है ना वो कांटेक्ट किया जुलाई 25 को असिस्टेंट मैनेजर राथी, जिन्होंने इन्फॉर्म किया चीफ इंजीनियर को कि वो कंसिडर कर रहे हैं एडवर्टाइज करेंगे ब्लॉक 25 फॉर सेल, बट वो कुछ उनकी इनेबिलिटी थी कि वो डिसीजन नहीं ले पाए, तो उन्होंने कंपनी को 25, but someone else is he speaking, will I guess. be able to confirm this when he will be back. President of the company will. Please go ahead, Farah. Okay. So I was saying कि उसकी अच्छा, इनेबिलिटी थी कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपना डिसीजन, देन उसने कंपनी से रिक्वेस्ट किया था कि वो एक्चुअली वो बाय करना चाह रहा है लैंड विद इन 1 मंथ ना, देन अच्छा फारा ये बताएं, ये डिसीजन किसका था? ये डिसीजन आई गेस मिस्टर जैन का था और मिस्टर राती। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा जो सेंटेंस की सीक्वेंस है वो बहुत ज्यादा आउट है और कम्युनिकेशन प्रॉपर भी नहीं की गई जो रिटर्न है आई गेस, तो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड अ बिट। एब्सोल्युटली ठीक है ना, कहने का मकसद ये है इट्स अ बैडली रिटन पीस ऑफ वर्क, इट इज पेनफुल, बहुत मुश्किल है इसको समझना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डिसीजन किस इस एम्बिगुअस, बहुत जिसने एम्बिगुअस लफ्ज कहा है बिल्कुल सही कहा है। इट्स मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन क्या कह रहा है, राती की डिसीजन है, असिस्टेंट मैनेजर की डिसीजन है, कौन किस वक्त क्या कह रहा है। तो इसको कहते हैं क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ डैंगलिंग मॉडिफायर्स, मतलब कि जो आप लिख रहे हो उसका सब्जेक्ट और डूअर कौन है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन में एक जरूरी चीज ये होती है, मैं नमान इसको पढ़ें जरा, अपने आप खुद पढ़ें। सर आप थोड़ी सी स्क्रीन प्लीज नीचे कर सकते हैं? जरूर। थैंक यू। जी फारा, फारा unmute. Is this better? Yes, Is it this is better better. to read? Yeah, it is better to read. Actually यहाँ पे चीफ इंजीनियर है जिसने कांटेक्ट किया 25 ऑफ जुलाई को असिस्टेंट मैनेजर जो मिस्टर राती हैं, उनसे इन्होंने एक्चुअली इंक्वायरी की है कि दैट कि 25 ब्लॉक 25 जो है वो आइदर ऑन सेल है कि नहीं। मिस्टर राती इन्फॉर्म दैट दे आर looking forward to sell it, but this decision cannot be taken unless the president of the company, who is Mr. Jan, whenever he is going to return from his business tour, then the decision will be taken, and he suggested that he should at least submit the written proposal. अच्छा अच्छा देखिए, अच्छा एक बात बताएं कि इसमें और पहले वाले में क्या फर्क था? सर उसमें बात जो लिखी हुई थी वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं थी, अनएम्बिगस थी, as you have said. प्रॉपर क्या बात होती है? प्रॉपर का मतलब क्या होता है? सर सही तरीके से सही अंदाज में जो डिलीवर किया जा रहा होता है, मतलब जो लिख रहे सही हैं अंदाज क्या होता है? तरतीब मतलब टू द पॉइंट। टू द पॉइंट क्या होता है? अपने आइडियाज क्लियरली बताना सर। मतलब जो मुद्दा है क्लियरली अपने आइडियाज क्लियरली कैसे बताते हैं? अल्फाज का चुनाव सही होना चाहिए। अल्फाज ये एक अच्छा आंसर है, अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए। और कुछ प्रॉपर्ली कैसे कम्युनिकेट करते हैं कि जो बात करनी है उसी पे सर विद इन सीक्वेंस लिखा जाए, टू द पॉइंट। हाँ, एक और अच्छा पॉइंट आया, टू द पॉइंट को कहा, एक बात का चुनाव, लफ्जों का चुनाव, और दूसरा कहा कि आपका लॉजिकल फ्लो, जो फ्लो होता है एक के बाद दूसरी बात, दूसरी के बाद तीसरी बात, वो एक लॉजिक में हो, ठीक है, लॉजिकल फ्लो। अच्छा आपको मेन पॉइंट बताता हूँ इसका क्या है, जो इसका क्रस्ट है ना, लाइक द मेन इशू 2 पैराग्राफ में वो बताऊं क्या है, सिंपल है, वो है बैड यूज ऑफ प्रोनाउंस। ही क्या है, शी क्या है, दे क्या है, इट क्या है, उन्होंने हर जगह उसको लिखा हुआ है, वो समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो पता नहीं चलता वो किस पे जा रहे हैं। वो राती कह रहे हैं कि वो असिस्टेंट मैनेजर कह रहे हैं कि वो कौन कह रहा है।
कहने का मकसद यह है जब आप बिजनेस कम्युनिकेशन अपने एंटरप्रेन्योरशिप के डॉक्यूमेंट्स लिखें तो उसमें डूअर ऑफ एक्शन उसको क्लियरली कहें कि वो क्या कह रहा है, सिंपल एक्टिव वर्ड्स में यूज करें, ठीक है। फारा इज रीडिंग, यू नो फारा इज रीडिंग, ठीक है, एंड देन शी, यू नो व्हाट हु फारा इज, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, इनको अगर आप कंफ्यूज करेंगे तो जिस बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जानी चाहती है कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, वो एम्बिगुअस हो जाती है। ऑलराइट, ओके, लास्ट थिंग before I leave you to it and try to answer your questions, I'm going to move towards the end of the session. Can you all see this? Yes, Yes. sir. ओके, चले अब आप गौर से चुप करके सुने जरा, जो हमने सारा किया मैं बताता हूं हमने क्या किया क्यों किया, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा फेमस एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, एक दो ऑथर्स हैं, बुवी एंड थिल, उन्होंने ये बनाया था। अच्छा, इसमें क्या कहता है कि एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, ठीक है। जिसमें अबू जर ने शुरू में इस सेशन के शुरू में कहा था कि दो लोग होते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाए, ठीक है। एक्चुअली ये है, ठीक है। और जिस तरह टॉनी रॉबिन्स ने कहा था कि अगर दो लोग अलग होते हैं, अगर हम ये समझ जाएंगे दूसरा बंदा अलग है तो हम, और उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी तो हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे अपने आप को, ठीक है। और ये रिलेट करेगा ब्रूस पे कि उसको प्रोजेक्ट कैसे रिपोर्ट बनानी चाहिए थी, ठीक है। तो गौर से सुने, पहले होता है सेंडर हैज एन आइडिया, उसके पास आइडिया आता है, जैसे कि मैंने कराची में एक जगह है बोट बेसन, बिरयानी खाने जानी है। सेंडर एनकोड्स दिस आइडिया इन अ मैसेज, वो मैसेज आता है कि मैंने बिरयानी खानी है। स्टेप नंबर 3, सेंडर प्रोड्यूसेस दिस मैसेज इन अ मीडियम, ठीक है। वो मीडियम में बनाता है, वो मीडियम क्या करता है, वो मीडियम होता है टेक्स्ट मैसेज, जैसे फोन का मैसेज आपने टेक्स्ट में लिख दिया है कि अपने दोस्त को बिरयानी खाने चलते हैं। देन सेंडर ट्रांसमिट्स दैट मैसेज थ्रू अ चैनल, वो चैनल क्या हुआ टेक्स्ट मैसेज का, वो हुआ यूफोन का चैनल फॉर एग्जांपल। वो यूफोन के नेटवर्क के थ्रू अपने दोस्त को मैसेज भेजता है। देन ऑडियंस रिसीव द मैसेज, उसका दोस्त मैसेज रिसीव करता है। ऑडियंस डिकोड्स द मैसेज, वो उसको पढ़ता है, ठीक है, बिरयानी खाने जानी है। देन ऑडियंस रिस्पॉन्स टू द मैसेज के, सोचता है कि जाऊं कि ना, अब वो फिर फीडबैक प्रोवाइड करता है, वो कहता है मैंने नहीं जाना या मैंने जाना है, ठीक है। ये एक बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया। अब आप मुझे ये बताएं, इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आते हैं? ब्रूस की रिपोर्ट खराब क्यों हुई थी? उसने जो रिपोर्ट प्रेजेंट की थी पूरा टेक्निकल डिटेल्स बनाई थी और बीच में छोटा सा लिख दिया था कि एक नया इंसेक्टिसाइड मैंने डिस्कवर किया है। वो इतना ज्यादा मैनेजमेंट का अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिला उसे? दुआ, एक तो उसने सेम मीडियम यूज नहीं किया था और उसका आइडिया जो था वो मैसेज में क्लियर नहीं था। सही 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 सही, ओके ओके। एंड देयर इज मोर, देयर इज अ लॉट मोर बेटा, देयर इज लॉट मोर। आयशा, you have your hand raised. Waris, go ahead. अच्छा मरवा, you go ahead. क्योंकि उसका जो मेन आइडिया था वो तो उसने ऐसे कैजुअली बता दिया था और उस पर इतना जोर नहीं दिया था, मतलब वो स्टैंड बाय नहीं कर रहा था उसका मेन आइडिया, इसीलिए बात क्लियर नहीं हुई और किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। अच्छा, आप गौर से सुने, असल में बात बताऊंगी थी नंबर 4 से पहले जो है ना, सेंडर हैज एन आइडिया, सेंडर एनकोड्स द आइडिया, सेंडर प्रोड्यूसेस द मैसेज इन अ मीडियम। ये सेंडर है, ये एक दिमाग है, वन ब्रेन, ये वन सेंडर साइड है, ठीक है। 5, 6, 7, 8 दिस इज अनदर ब्रेन, ठीक है। ब्रेन नंबर 1 is trying to communicate with brain number 2. Brain number 1, the person number 1
वो अलग तरीके से उसकी ट्रेनिंग हुई हुई है, वो एक साइंटिस्ट है, वो रिसर्चर है, वो मैथमेटिशियन है, वो क्या कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हुआ है, उसको पश्तो ज्यादा अच्छी आती है, उसको क्या कहते हैं उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती। अब ब्रेन नंबर 2 5 6 7 8 वो समझो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का कोई डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर सिंध में पैदा हुआ है, उसको उर्दू और पश्तो इतनी अच्छी नहीं आती, वो एक सेल्स का इंसान है, वो उसको रिपोर्ट को पढ़ना चाहता है, फायदे देखना चाहता है कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं कि मैं कंपनी में इसको बेच सकूं। ठीक है, तो जो पहला ब्रेन है सेंडर जो है वो उससे बात उस तरह कर ही नहीं रहा जिस तरह सेल्स को समझ आती है। ठीक है, अब आपको थोड़ी और अच्छी एग्जांपल देता हूं। आप अपने अम्मी अब्बू के सॉरी okay, can you mute your mics for a bit? okay, आप आपको एग्जांपल देता हूं क्या थी वो एग्जांपल मेरे जहन से। हाँ, अब आप ये देखें, आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, बूढ़े पेरेंट्स के पास, और उनके पास जाते हैं, कोई बात करते हैं, वो आपको झटक देते हैं, वो आपको समझाते हैं कि ये नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल आप ए लेवल में पढ़ रही हैं और आप कहती हैं मैंने जाना है लॉस वेगस जाना है, लॉस एंजलिस जाना है, वो आपको कहते हैं नहीं जाना। आप अपने जहन में कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, उनको पता नहीं है कि मैं तो यंग हूं, मैंने तो जाना है, मैंने तो जिंदगी एक्सपीरियंस करनी है। और पेरेंट्स के दिमाग, पेरेंट्स का जहन एक जिंदगी गुजारी होती है उन्होंने, वो रिसीवर है। ठीक है, वो रिसीवर, वो अपने नजरिए से जिंदगी देख रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, आपके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। अगर आपने उनको कोई चीज बतानी है तो उनकी वो हेजिटेशन टैकल करनी पड़ेंगी। मेरी एक स्टूडेंट थी, उनको लम्स में सेमिनार पे जाना था, लेकिन उनकी फैमिली उनको कराची से बाहर नहीं भेजती। उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने कहा कि मुझे पता है मेरे पेरेंट्स हेजिटेट करते हैं, उनको डर है कि मैं शहर से बाहर जाऊंगी तो उनके लिए रिस्की है, वो मैं परेशान हो सकती हूँ। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्हें सारी प्रोग्राम की डिटेल्स लम्स में ला के टेबल पे रखी। उन्होंने अपने दोस्तों से वीडियोस बनवाई लम्स में, और उन्होंने जाके अपने पेरेंट्स को दिखाया, देखिए ये होता है लम्स में, इस तरह हम जाएंगे फ्लाइट में, इस तरह हम हॉस्टल में रहेंगे, इस तरह हमारा सेमिनार होगा, इतने 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी। इससे पहले वो पूछती कि अब्बू मैं लम्स चली जाऊं, उनके अब्बू ने कहा हाँ बेटा जाओ, ये तो जरूरी है आपके लिए, ये बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो कहने का मकसद ये है कि 2 डिफरेंट लोग, एक एनकोड करता है, दूसरा डिकोड करता है। एक ब्रेन अपने लिहाज से एनकोड करता है, दूसरा ब्रेन अपने लिहाज से समझता है। एक कस्टमर, आप अपना बिजनेस आइडिया अपने लिहाज से बनाते हो, अगर वही आइडिया दूसरे कस्टमर को आपको समझना है तो he will not buy it, you will not be able to sell that to him. So that's the main point, that's where a lot of conflict occurs. Once you understand कि आप जिस तरह एनकोड करोगे, पॉइंट नंबर 2 इन दिस डायग्राम दैट यू सी, जिस तरह आप उसको एनकोड करोगे अपने ब्रेन के लिहाज से, आपने अपने जहन में ये रखना है कि दूसरा बंदा पॉइंट नंबर 6 उसको डिकोड कैसे करेगा, उसको समझेगा कैसे। जिस तरह आप उसको मैसेज को बनाओगे, ऐसा बनाओ कि जब वो पॉइंट नंबर 6 पे जाए वो उसको उस तरह समझे जैसे आप उसको समझाना चाहते हो। यानी कि आप उसको समझाओ कि मुझे एक स्विंग चाहिए ट्री पे लटकी हुई, वो आपको बड़ा सा रोलर कोस्टर ना बना के दे दे। ठीक है, so that's the main point. All right, any questions? Let's take questions from this. All right, participants, we are well over time, so we have just 5 minutes for questions. If anyone would like to please ask. Anwar, go ahead. Anwar, speak please. Anwar, you're unmuted, please speak. अच्छा, आयशा, you speak please. सर आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस कम्युनिकेशन ही हर वक्त पढ़ाता रहता हूँ।
I'm a professor at IBA, and I teach business communication, management, and organization behavior. जी सर ठीक है थैंक यू Okay. अच्छा मेरा Nawaz, क्वेश्चन है टू एंड अच्छा ठहरे आपने तस्कीन किसको बुलाया? sir, this is Nawazish who's held up a hand, but unmute your so please go ahead. You can go ahead. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Sir, can you give an example of any company who is which has failed delivering its message to the consumer? There are many. It happens in acquisitions. It happens. Bear and Stern. So बहुत बड़ा financial crisis हुआ था. ये सारी examples हर जगह पे हैं. जो भी आप वो failure ये हुआ था कि financial crisis जब हुआ, they were unable to tell their creditors कि ये जो हम products बना आपको financial mortgage दे रहे हैं, ये किस नौयत का, इसका रिस्क फैक्टर क्या है, ठीक है, उसकी वजह से उनका सारा रोल डाउन हुआ. अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है. Sorry to interrupt Usman, Mr. Usman. If you could just end it, wrap it up very quickly because we have another international session and we would need to use the ID for that also. Okay. If you, All right. Yeah, if you wrap it up. All right. I'm done actually. I'm all right. If Or there are no any other last questions, I'm all final right. comments that you were saying, you were asking a question, if you could just end it on that. Mr. Usman? No, but I'm just saying. Okay, yeah. Let me leave you with this. Okay. Yeah. All right. Since this is with CED and so it's about entrepreneurship. I want to leave you with this is okay, when you're writing your business proposal, when you're selling your product, when you're reaching out to the customer, when you're negotiating price, anything that you do, keep the you attitude. You attitude मैंने अभी लफ्ज इसलिए यूज किया है क्योंकि इसके पीछे पूरे 2-3 लेक्चर्स होते हैं. You attitude क्या होता है कि जिस बंदे के लिए आप लिख रहे हो, जिसको कन्विंस करना चाह रहे हो, उसको समझो, ठीक है, उसके लिहाज से लिखें आप. Alright, thank you, Taskeen. Yes, thank you, Usman. All right. Usman, thank you for a very informative session. I am sure the participants benefited from it. It was a very insightful introduction to business communication, especially the information communication process. So I'm sure that the participants would love to have you again in the other session that we've planned for you. All right, thank you. Sorry about this technical trouble. I don't know why that happened. Okay, It take care. happens. No issues at all. All right, Thank you so Allah much. Thank Hafiz. you so much. Jazakallah. Allah Hafiz.